Very good morning students. In last videos I taught you about the first part of grammar and the first part sentence. But today I am going to say you the second part which name is noun. We have already read the definition of noun, that a noun is a name of person, place, thing or animal. And we can say that a noun is a part of speech that helps us to name anything that we see around us. So those things we are seeing around us, that is known as nouns. So types of nouns here: proper noun, common nouns, collective nouns, material nouns and abstract nouns. The first one is proper noun. Proper noun is a definition in which we can say that name of any person, place or object. Like we can say that Mr. Shyam or Mr. Sharma. This is known as proper. This is the example of proper noun. We can say the place like Bhopal, Indore, or Bhopal, Indore, Gwalior. These are the cities name of known as proper nouns. And any object. The name of any object is also known as the proper noun. So we can say that the name of any place, persons or thing is known as proper noun. The next one is common noun. In common noun, general names of similar groups of person, animals or things. Like we can say that the group of person, like डॉक्टर से डॉक्टर जो होता है वो मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या कह सकते हैं, डॉक्टर कह सकते हैं. डॉक्टर इज अ कॉमन नाउन विच इज यूज फॉर द मेल एज वेल एज फीमेल. And the next one is the animals. In animals we can say as commonly two there are many animals like horse, deer, elephant, cow. So we can call them common noun as an animals or things. अगर बहुत सारी वस्तुएं एक साथ है तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारे पेन हैं तो हम अलग अलग पेन का नाम तो लेंगे नहीं, पर हम लेंगे कि ये बहुत सारे पेन हैं. तो इस तरह से कॉमन नाउन को हम कह सकते हैं कि हम कॉमन नाउन जो है वो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, जैसे कि जनरल नेम्स होते हैं कि सिंगलर चीज़ों के, उनके लिए यूज़ करते हैं. सिंगलर चीज़ें जैसे बताया मैंने भी आपको कि अगर डॉक्टर हैं, पर्सनस हैं, तो हम उनमें क्या करेंगे, जनरल नेम से लगाएंगे, जैसे चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. पुलिस में भी अगर मेल हो या फीमेल हो पर हम उन्हें पुलिस ही कहेंगे. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन. The third definition is collective noun. In collective noun, we can say the group of any person, things or animals. Like group of person, people. If there is only one man, then we can call it person. But if there are many persons, then it could be known as a people. Or if there is only one flower, then it could be known as only flower. But if there are many flowers and we have the group of flowers, so it could be known as a bunch of flowers. तो जो bunch of flowers है ये क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा. वैसे अगर बहुत सारे सोल्जर्स हैं, एक ग्रुप है सोल्जर्स का, तो हम उसे कहेंगे आर्मी. इस तरह से जब हम किसी का ग्रुप होता है, जैसे एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स में ट्रूप होता है, पैक होता है, इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, उन्हें एक कलेक्टिव नाउन की तरह उनको हम यूज करेंगे. नेक्स्ट है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन, मटेरियल और सब्सटेंसेस दैट यूज फॉर मेकिंग थिंग्स. ऐसे सब्सटेंस जो कि कुछ चीज़ें बनाने के काम आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं. As we have used sugar, water, milk, honey, these all are the example of material noun, because in material noun all the materials comes in that group. The next one is abstract noun. In abstract noun, all name of the qualities, ideas, emotions, feelings and conditions are here. We can say that love, pride or honesty. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो हमारी फीलिंग्स बताते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमारी फीलिंग बताते हैं, हमारे इमोशन बताते हैं या कंडीशन बताते हैं, या फिर हमारी क्वालिटी बताते हैं या आइडियाज़ बताते हैं, दैट आर नॉन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. So dear student, today I explained to you about the definition of noun and with all the examples of the types of nouns, and we have read the 5 types of noun. The first one was proper noun, second one was common noun, third one is collective noun,
fourth is material noun, and the last one is abstract noun. Here are some example of collective noun which I am going to explain you. The description is a bundle of keys. When we have the lot of keys, then the bundle of keys would be called as a bunch of keys. A collection of ships, a place where many ships are there, and the collection of ships is called as fleet. A group of directors, as we also know that the group of that we know the film board, so the group of directors is known as board. A collection of soldiers, a place where many soldiers are present, that would be called as army. A group of ladies, whenever we see the group of ladies, then it would be called as baby. A group of people, you know well, the group of people is known as crowd. So these are the collective nouns. जब भी हम किसी कोई ग्रुप को एक साथ कोई नाम देते हैं, दूसरा नाम देते हैं, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है, क्योंकि अब वो ग्रुप में होते हैं. अगर एक व्यक्ति होता है तो हम उसे मैन कहेंगे, एक वुमेन है तो हम उसे वुमेन कहेंगे, लेकिन बॉय है, गर्ल है, इस तरह से. लेकिन अगर ये सब मिलकर हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे? पीपल कहेंगे. A group of wild animals is known as zoo. A collection of geese is known as gaggle. A number of trees are known as grove. जैसे कि आपने सोशल में पढ़ा ही होगा, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इस टाइप से. तो वहाँ पर भी हमने ग्रोव जो लगाया गया है ट्रीज़ के कलेक्शन के लिए लगाया गया है. अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स इज़ नॉन एज बुके. बुके तो आप सभी ने देखा होगा. बुके में क्या होता है? बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन एज बुके. अ ग्रुप ऑफ थीव्स, चोरों की क्या होती है? गैंग होती है. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इज़ नॉन एज क्लस्टर. अ कलेक्शन ऑफ टूल्स, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का कलेक्शन है, जैसे कोई किसी तरह के टूल्स हैं, जैसे कि जो बहुत सारे हमारे पास कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि सीज़र होती है, पिंजर्स होता है ना, या फिर नट बोल्ट को कसने के लिए जो पेचकस होता है. इस टाइप से जो टूल्स होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सेट कहते हैं. या फिर किसी भी कोई दूसरी चीज़ों का कोई टूल होता है, जो टूल्स होते हैं हमारे पास. मान लीजिए कि हमारे पास किसी चीज़ को साफ़ करने के टूल्स है तो हम उसे क्या कहेंगे? सेट कहेंगे. अ ग्रुप ऑफ बीज, जो अगर बीज का ग्रुप है, मतलब बहुत सारी मधुमक्खियों का ग्रुप है, तो हम उसे क्या कहेंगे? स्वार्म कहेंगे. इसी प्रकार अ कलेक्शन ऑफ पपीज़, यानी बहुत सारे छोटे छोटे पपी हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? लिटर कहेंगे. अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, आप सभी को पता है बहुत सारे अगर प्लेयर्स है तो उससे क्या कहते हैं? टीम कहते हैं. वेरी गुड, टीम कहते हैं. अ सेट ऑफ रूम्स, अगर बहुत सारे रूम का सेट है, एक प्लेस है जहाँ बहुत सारे रूम है, तो उसे क्या कहेंगे हम? सूट कहेंगे. अ नंबर ऑफ सेलर्स, अगर बहुत सारे सेलर्स एक जगह सेलर्स हैं तो वो सेलर्स को हम कलेक्शन करके क्या कहेंगे? क्रू. अ नंबर ऑफ जजेस, ऐसी प्लेस जहाँ बहुत सारे जजेस हो उसे कहेंगे हम जूरी. अ नंबर ऑफ चिकन्स हैच्ड एट द सेम टाइम, बहुत सारे चिकन्स को अगर एक ही बार में निकाला गया हो अंडों से तो उसे कहेंगे ब्रूड. अ नंबर ऑफ कैटल इज़ नॉन एज हर्ड. अ नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट ट्रीज हो, क्या कहलाएगा? ऑर्चर्ड. अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स कहाँ होता है? लाइब्रेरी में, डेफिनेटली. तो हम उसे क्या कहेंगे? लाइब्रेरी कहेंगे, जहाँ बहुत सारी बुक्स प्रेजेंट होती हैं. अ नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कंसर्ट और लेक्चर, ऐसी प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करने जाते हैं? सुनने जाते हैं, है ना, या कोई कंसर्ट करने जाते हैं, मतलब किसी कंसर्ट को सुनने जाते हैं, लेक्चर को अटेंड करने जाते हैं, वो क्या कहलाता है? कॉन्ग्रेगेशन कहलाता है. अ नंबर ऑफ ड्रॉर्स इज़ नॉन एज चेस्ट. अ नंबर ऑफ स्टिक्स इज़ नॉन एज बंडल, जैसे कि अगर आपके पास बहुत सारी लकड़ियाँ हों, उनको आप क्या बोलोगे? बंडल बोलोगे. अ नंबर ऑफ हाउंड्स इज़ नॉन एज पैक. एंड अ नंबर ऑफ डांसर्स इज़ नॉन एज ट्रूप. Now the next one is abstract noun. Here are the many examples of abstract noun. Abstract noun is made by abstract noun is made by some verbs like grow. Grow is verb और grow से ही हम नया word बनाते हैं जिसे हम कहते हैं growth. This is known as abstract noun. Next is laugh.
लॉफ से एक न्यू वर्ड बनता है जिसे हम कहते हैं लॉफ्टर, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडवाइस, बियर एंड एक्ट, these all are the verb, but when we apply some letters in that, then it would be changed in abstract noun. Like bear means birth, advice और act का action। इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हम वर्ब से बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से भी बनते हैं। लाइक पेशेंट, पेशेंट जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और पेशेंट से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे फुलिश का फुलिशनेस होगा, एबल का एबिलिटी होगा, क्रूअल का क्रूअल्टी होगा, डार्क का डार्कनेस होगा, और लेजी का लेजीनेस होगा। इस तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एडजेक्टिव फॉर्म्स चेंज होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। नाउ विथ कॉमन नाउन से भी हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, जैसे कि एजेंट से एजेंसी, किंग से किंगशिप बनेगा, स्कूल से स्कूलिंग, और नोबल से नोबिलिटी, स्लेव से स्लेवरी, चाइल्ड से चाइल्डहुड, और प्रिंस से प्रिंसली। Let us learn how abstract nouns are formed with the help of some common suffixes। किसी में हम common suffixes लगा देते हैं जिससे कि क्या बन जाते हैं, abstract noun बन जाते हैं। जैसे age लगा दिया, AGE, shortage, passage, vestige, इस तरह से हमने age लगाकर क्या बनाया, उसको abstract noun बनाया। वैसे ही meant लगा के अपॉइंटमेंट, मूवमेंट, पनिशमेंट, एग्रीमेंट, इस तरह से हमने क्या बनाए हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए हैं। इसी तरह से हुड, बॉयहुड, चाइल्डहुड, मैनहुड, ये क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जो किसी की क्या बताते हैं, मतलब किसी जो हमारी फीलिंग्स को बताते हैं या फिर इमोशन को बताते हैं। इस तरह से जो हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग ENCE लगा के भी हम बना सकते हैं, जैसे अब्सेंट का अब्सेंस, प्रेजेंट का प्रेजेंस, ओबीडियंट का ओबीडियंस। इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। थैंक यू।